Hello students, welcome you all again in your virtual class learning. As you know that we have started all the chapters and so many students have doubt that maybe your exam will be taken or not. That is the decision of the school. That school will take the decision either the exams are means there or not. Okay guys, but still then you don't think that as the exams are not means taking the school is not going to take any exam, so there is no need to learn anything. No, don't remain in the false conception. Actually, you know that your board exam will be carried out definitely, and in that which course will come, we are not definite about it. So for that reason, parallelly in each and every subject, I am actually not talking about my subject only, but each and every subject you have to be very careful. And you know, in the last means yesterday, we are having that doubt solving lecture. So many students ask the casual doubts to me. So it's okay. But parallelly, you have to practice grammar more. Okay, yesterday also, I told you that practice the grammar part because section C is only for grammar. So now you know that grammar also I have taught, tenses we have completed, active passive we have completed, question type also over. Now lessons explanation is going on. So for that reason you have to be very careful. Once you are observing the chapters of mine, at that time first understand the story. Then after understanding it, you can read the chapter because it will come in the form of MCQ. Sometimes they are asked in between the content only. So for clearation of the concepts or any content, you have to read the chapter. Then try to write the question answers. If you have any query, then refer CAMP Publication Digest. I already have been told to you. So now, today we are starting the third chapter. Actually, we had started it yesterday, but its second part I am going to start, and its name is Black Aeroplane. Okay, it is also the story of the flight. You know, two stories about flying we have been started. In first part it is the story of the seagull. Now it is the second part, its name is Black Aeroplane. So what does it mean? Okay, why the author is saying that Black Aeroplane and how it is related with the story of the flight. So let's see. So here Black Aeroplane is the story written by Frederick Forsyth. So what the writer is saying here, first we are looking after the hard words. Actually in this lesson not hard words are given because this is very easy chapter. So the story is the Black Aeroplane. So let's see what is given here. In the starting, the author is saying that the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. Actually here, the narrator is going to meet his native place. So he was very curious or excited that as soon as means very early he is trying his best to reach his native place. So he is saying here that it is the moon was coming up in the east and behind me the stars were shining, the sky was very clear and there was not a single cloud in the sky. And the narrator is saying that he was very happy because all the countryside people were sleeping there and the narrator was flying the plane. Its name is Old Dakota. What is the name of the aeroplane? Sometimes it would come in the exam only for MCQ. So the old plane's name, the narrator was flying was Old Dakota plane, and he was flying from means over France and he wanted to back to England. Okay, means here we come to know that the author wanted to return to England. England is narrator's native place. Got it guys? Next, whenever you know that whenever at every time if we supposed to meet our native place, we all are very excited that our relatives, not much but close relatives, we are going to meet them. So we are having some excitement in our
mind. So the same way, the narrator also having a lot of excitement. That is why he was dreaming to spend a holiday in his native place, and actually he wanted to enjoy or spend the holidays with his family. So whenever he looked at his watch, it was 1:30 in the morning. Means it is the time of morning after 12 o'clock. Okay. So the narrator is saying here, I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. Now, whenever he was flying over France, he was capable to see the countryside there. The lights were, we can say that, no, the twinkling. And the narrator come to know that it's 1:30. So he decided to call the control room. You know, the aeroplane or whatever the transportation facilities were there, they are having their control room. So the narrator called in Paris control room, where the control room was in the Paris. So he was saying there, whenever he looked at the nose of the aeroplane, means at the front of the aeroplane, he saw the lights of a big city, and he wanted to know that which city he is passing over. So here he switched on the aeroplane. He switched on the radio in the aeroplane and said the Paris control Dakota DS088 over. तुमको पता है वो लोग इस तरह से ही बात करते हैं, जब प्लेन से अपने कंट्रोल रूम में बात करते हैं तो their way is like this. So I am speaking from Paris control Dakota DS088. Can you hear me? I am on my way to England. Over. वो बता रहा है कि actually I wanted to go to England. So whatever place I am flying from, is it okay? उसको ऐसे बोलना था वहाँ पे कि जो जगह से मैं जा रहा हूँ, that place is right, correct, that way is correct, वो उसको एक्चुअली पेरिस कंट्रोल में पूछना था. फिर वहाँ से क्या रिप्लाई आता है देखो. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. So the lady who was seated in the control room situated in Paris answered the narrator. She told the narrator that yes, I can hear you, DS088, and if you want to go to England, you have to take a turn of 12 degrees to west. देखो उसने रास्ता बताया. Means the main purpose of the narrator is to search the way, okay, or to get the way that where he wanted to go. Actually, he wanted to go to England because England is his native place. So that he phoned in the control room and he got the information about the way, that where he actually wanted to go. So that lady answered him that if you want to go to England, you just take the 12 degrees west now and DS088 over. That type of conversation is going on between the narrator and the lady who was seated in the Paris control. Got it, guys? Move forward. अभी आगे बढ़ते हैं. देखो, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. Abhi, as soon as he got the message, he just carried forward it. जैसे ही उसको वो मैसेज मिला, उसके अकॉर्डिंग उसने फॉलो अप किया. उसने क्या किया देखो कि सबसे पहले उसने मैप चेक किया, उसका कंपास चेक किया, क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर दैट. सो ही चेक्ड द कंपास, पैरेलली चेक्ड द मैप एंड स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक. फ्यूल भी देखना जरूरी है कि प्लेन के अंदर कितना फ्यूल है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ सकता है. सो ही चेक्ड द फ्यूल आल्सो एंड he thought that fuel is good enough and he can easily reach to England. So he taken a turn of 12 degrees towards west and that turn was taken to him towards England. Got it? वो जो टर्न उसने लिया वो इंग्लैंड की ओर उसको लेके जाने वाला था. एंड यू नो दैट ही वाज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम. फिर आगे क्या हुआ देखो. The narrator is saying here, I will be in time for breakfast. I thought a good English breakfast, everything was going well and it was an easy flight. As soon as he come to know that as he had taken the 12 degrees west turn, he thought, means हम लोग ने अपने कुछ प्लानिंग्स अपने माइंड में बना के रखते थे कि वहाँ हम लोग नाश्ता वो लोग करते हैं, तब तक तो पहुँच ही जाऊंगा.
So I have a we can say that good enough breakfast at my home, and especially it is a English breakfast, some different, you know, हर एक कल्चर का, हर एक मीन्स अपने जैसे जैसे स्टेट में जाते हैं, यू नो इंडिया इज अ यूनिटी डाइवर्सिटी इज द स्पेशलिटी ऑफ द इंडिया। तो इंडिया की अगर हर एक स्पेशलिटी है, हर जगह पे सब लोग एक जैसा ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है और इंग्लैंड का कुछ डिफरेंट ब्रेकफास्ट होगा, एंड ही वांटेड टू एंजॉय दैट ब्रेकफास्ट। इसलिए वो बोल रहे कि ब्रेकफास्ट तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा और ये फ्लाइट जो है वो बहुत ईजी होगी, क्योंकि अभी पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस टू रीच दैट प्लेस, उसको कैसे भी करके वो प्लेस में पहुंचना था, एंड ही वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज अ वेरी ईजी फ्लाइट एंड आई वुड बी देयर टिल ब्रेकफास्ट टाइम, ऐसे वो वहाँ पे सोच रहा था। फिर आगे क्या होता है, Paris was about 150 kilometers behind me when he saw, or I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. Now here the problem created. What the problem? Whenever he moved ahead, जब वो आगे गया तो उसको समझ में आया कि he crossed 150 kilometers. Okay, he had seen that I passed 150 kilometers. Paris is 150 kilometers from me. Okay, he is moving ahead and Paris is behind him. जब उसको पता चला तो he had seen there that black clouds are covered the sky. Black clouds जो है उसने sky को cover कर लिया है। The narrator is saying that the black clouds are like the big mountains. So the narrator is saying it is not possible for me to cross that mountain, or not possible. I don't have any enough fuel that I can turn over or turn around the clouds. उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो क्लाउड्स को घूम के फिर जाता, क्योंकि उसको सीधा ही जाना था और सीधा उसके लिए रास्ता पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके सामने अचानक से ब्लैक क्लाउड जो है वो आ गए और वो इतने वी कैन से दैट दे वर सो डेंजरस दैट इज नॉट पॉसिबल। द नैरेटर इज हैविंग अ फियर इन हिज माइंड दैट इट कुड नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो इन बिटवीन देम, उसके बीच में से जाना। द नैरेटर डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था और उसने टैंक में भी देखा कि उतना फ्यूल भी उसके पास नहीं था, तो अभी वो करे तो क्या करे। देन व्हाट हैपन, उसके माइंड में भी डर आया कि मैं नॉर्थ और साउथ से होके भी जाऊँ, क्योंकि तुमको पता है वो वेस्ट में टर्न उसने ले लिया था, नॉर्थ में जाऊंगा या साउथ से भी जाऊंगा ऐसे टर्न लेके। तो द नैरेटर डिडंट हैव इनफ फ्यूल, फ्यूल भी उसके पास नहीं था, तो अभी करे तो क्या करे। एक ही रास्ता उसके पास था, कौन सा? कैन यू गेस? जस्ट टेक यू टर्न, यू टर्न लो, वापस पेरिस चलो, बस वही उसके पास एक रास्ता था जो उसको जाना नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, ये सिचुएशन इज अ वेरी वी कैन से दैट प्रॉब्लमेटिक एंड डिलेमेटिक सिचुएशन। कैसे? उसको एक्चुअली इंग्लैंड जाना था, जो उसका घर वहाँ पे था, उसके रिलेटिव्स, मम्मी पापा, वाइफ, बच्चे जो भी वो वहाँ पे रहते थे। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसको लगा कि मैं यहाँ से तो जाऊँगा, वेरी इजी फ्लाइट है, और थोड़े ही समय में आकाश स्काई के अंदर ब्लैक क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। फिर बाद में वो सोचने लगा कि मैं मीन्स अपने नहीं, कभी कभी रास्ता खराब हो तो घूम के जाते हैं, तो घूम के जाता हूँ, बट उसके पास फ्यूल नहीं था, तो उसके पास एक ही रास्ता था, कौन सा? टेक यू टर्न, पीछे चले जाओ, बट उसको जाना नहीं था। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, वेन एवर दैट टाइप ऑफ सिचुएशन विल कम इन एवरीवन्स लाइफ, हर एक के लाइफ में वो सिचुएशन आती है। तो जब वो सोचता है कि मुझे जाना नहीं है, तो अपना जो डिसीजन है दैट इज बेटर। हम लोग फिर अपना खुद का डिसीजन लेते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे भी पहुँच जाऊँ, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो डिसीजन को? रिस्क। इजंट इट गाइस? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रिस्क। तो अभी जो भी उसका डिसीजन था, ही जस्ट लाइक द, इट इज जस्ट लाइक द रिस्क, वो रिस्क जैसा ही था। एक तो वहाँ से जाना है या मुड़ना है, उसके पास दो डिसीजन थे। अभी वो कौन सा डिसीजन लेता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आगे बोला है देखो, आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। उसने बोला कि अभी जैसे मैंने तुमको बताया कि he has only one choice to take the U-turn and go back to Paris, but he didn't. What it? उसको
पेरिस जाने के अलावा दूसरा रास्ता था ही नहीं, क्योंकि आगे तो ब्लैक क्लाउड्स थे, आगे जर्नी पॉसिबल ही नहीं था, तो उसको पेरिस जाना था, बट उसको जाना नहीं था। ओके, सो वो बोल रहा है कि आई वांटेड टू टेक द ब्रेकफास्ट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि उसको नाश्ता कहाँ करना था, इंग्लैंड में। ये उसका फर्म डिसीजन था। अभी देखते हैं क्या होता है। एंड आई विल टेक द रिस्क I thought and flew that old Lakota straight over the storm. So he was ready to take the risk. उसने रिस्क ले ली। उसने ऐसा बोला कि मैं तो यहाँ से ही जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। मेरा डैकोटा, और मेन थिंग इज दैट हिज प्लेन इज वेरी ओल्ड। अगर नया प्लेन होता है तो चलो अपने चले जाते हैं, बट ओल्ड प्लेन है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सपोज अपने कार से कहीं जा रहे हैं, अपनी कार न्यू है तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है, धड़ाधड़ निकल जाती है कैसे भी रास्ता हो। पर अगर ओल्ड कार है, वी हैव टू थिंक अ बिट, लिटिल बिट, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि कार के टायर फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरे पास ओल्ड डैकोटा प्लेन है, अगर मैं रिस्क लेना चाहूँ भी, उसके बीच में से मैं जाना चाहूँ भी, तो भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? प्लेन को कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दैट टाइप ऑफ कंफ्यूजन वाज देयर। स्टिल व्हाट द डिसीजन ही इज गोइंग टू टेक, तो भी उसने क्या डिसीजन लिया देखो, वो आगे बता रहा है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अभी देखो, he entered in the black clouds. Finally he had taken his decision. उसने अपना डिसीजन ले लिया और वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर उसने एंटर कर लिया। अभी जैसे ही वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर एंटर हुआ, व्हाट हैपेंड यार, वहां पे उसको देखने को मिला कि कुछ नहीं दिख रहा है, ओनली ब्लैक लाइट इज देयर। इवन वो प्लेन के अंदर के पार्ट्स भी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू वॉच देम क्लियरली। फिर उसने कंपास की ओर देखा, द कंपास ऑल्सो डिडंट वर्किंग, वो कंपास भी वर्क कर नहीं रहा था, वो स्टॉप हुआ है, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स इतने ठीक थे कि जिसकी वजह से कंपास को डायरेक्शन समझने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कंपास इज जस्ट मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल ही घूम रहा था। व्हाई? दैट नीडल इज मूविंग राउंड एंड राउंड बिकॉज द नीडल कांट डिसाइड दैट विच डायरेक्शन इट वुड बी देयर। कौन सा डायरेक्शन है कंपास को भी पता नहीं चल रहा था। मीन्स वी कैन से दैट द कंपास वॉज डेड, कंपास ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया। अभी उसके बाद जब उसने देखा, वहां पे दिया हुआ है कि कंपास तो वर्क कर नहीं रहा, दूसरे तुरंत उसने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे, कंपास के अलावा उसके पास रेडियो था या और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, दे वर डेड टू, वो भी डेड हो चुके थे। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन था, मैप भी उसने देखा, मैप में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंपास भी डेड हो चुका था। अभी करें तो क्या करें? फिर उसने सोचा कि मैं मेरे रेडियो के ऊपर कंट्रोल रूम में कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। फिर क्या हुआ देखो, वो अभी रेडियो पे बात कर रहा है, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अभी राइटर यहाँ पे बता रहा है, देखो उसने रेडियो के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश की। So he was saying that Paris control, but no one was answering from the radio. It means that the radio was dead too. कोई भी उसमें से आंसर नहीं दे रहा था। उसका मीनिंग क्या हुआ? रेडियो भी डेड हो गया। अभी वो बोले तो किसको बोले? उसके आसपास देखा तो ब्लैक क्लाउड्स है, कोई उसको दिख नहीं रहा है। सो उसको पता चला कि आई वॉज लॉस्ट, अभी मैं खो गया। क्योंकि स्काई के अंदर तुमको पता है बेटा, रोड के ऊपर तो चलो रोड्स होते हैं, हम लोग कहीं पे गाड़ी रोक भी सकते हैं, प्लेन को कहाँ रोके? सबसे प्रॉब्लम वो है कि नहीं? लैंडिंग भी कैसे करें, क्योंकि नीचे क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सो वो प्रॉब्लम में आ गया। उसने देखा कि अभी तो ये स्टॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं है, ओनली द ब्लैक क्लाउड्स आर सराउंडेड मी, सिर्फ ब्लैक क्लाउड्स ने मुझे सराउंड करके रखा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर बाद में वो प्रॉब्लम में आ गया कि अभी मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से इससे मैं बाहर निकलूं, नहीं तो माय डेथ और माय एंड इज वेरी नियर। उसने सब कुछ कर लिया कि मेरा एंड पास में है, बट हिज माइंड इज नॉट टेकिंग
वी कैन से दैट उसकी जो मन है, उसका माइंड, वो विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी एक ही डिजायर थी। क्या एम्बिशन थी उसकी? मुझे घर पहुंचना है और मुझे घर का नाश्ता करना है, बस वही उसकी एक इच्छा थी जो उसको कंप्लीट करनी थी। पर दूसरे भी अपने मन में विचार आते हैं, क्योंकि ऐसी जब सिचुएशन आती है तो सबके मन में ऐसे ही विचार आते हैं कि करें तो क्या करें। फिर आगे क्या होता है देखो, देन आई सॉ द अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अचानक से, वी कैन से इट इज अ मिरेकल, अचानक से वहां पे कुछ ऐसे जादू जैसा ही हुआ, उसको एक एरोप्लेन दिखाई दिया। तुमको पता है एरोप्लेन्स के विंग्स के ऊपर और ऐसे बॉर्डर पे लाइट्स होते हैं, तुमने कभी देखा हो तो, वो एरोप्लेन की बॉर्डर बताते हैं। तो यहाँ पे उसको एक एरोप्लेन दिखा, उसके विंग्स के ऊपर लाइट्स तो नहीं थे, बट द नैरेटर कैन कैपेबल टू सी दैट द प्लेन वाज जस्ट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम। उसके प्लेन के जस्ट आगे एक प्लेन उड़ रहा था, उसने देखा एक प्लेन वहां पे उड़ रहा है, उसके लाइट्स भी नहीं है ज्यादा, बट वो समझ में आ रहा है उसको कि मेरे आगे कुछ तो है। फिर बाद में क्या हुआ देखो, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। फिर उसने देखा कि वो स्टॉर्म के अंदर जो प्लेन आगे उड़ रहा था, उसने देखा कि वहां उसके अंदर पायलट बैठा हुआ है, और वो जो पायलट है वो मेरी ओर देख रहा है, वो भी उसको पता चल रहा है। फिर क्या होता है, I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person, and he lifted one hand and waved. उसने जब ऐसे देखा कि एक पर्सन जो है, पायलट स्पेशली, वो उसकी ओर देख रहा है, एंड द पायलट वाज वेविंग हिज हैंड, वो ऐसे हैंड वेव कर रहा है। तो वंस ही हैड सीन दैट पर्सन, ही वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पी। तुमको पता है जब हम लोग मुसीबत में होते हैं और जब हमारे साथ कोई हमारे जैसा ही इंसान दिखता है तो हमको थोड़ा सिंपैथी मिलता है, हाश हमारे साथ कोई है, यानी हम अकेले नहीं फंसे हैं, दूसरा भी कोई है। उसको देख के एटलीस्ट हम लोग खुश हो जाते हैं, भले एंड कुछ भी हो, हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते, पर जब हम लोग को कोई हमारे जैसा ही दूसरा मिलता है तो वी आर वेरी हैप्पी। सेम थिंग इज हैपेंड विद द नैरेटर, सेम थिंग नैरेटर के साथ ही। नैरेटर ने जब देखा कि कोई आगे, उसके आगे कोई प्लेन उड़ रहा है और जो पायलट है वो उसकी ओर देख के हाथ वेव कर रहा है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको एटलीस्ट इतना पता चला कि चलो मेरे साथ कोई तो है, तो अगर हमारे साथ कोई होता है तो सिचुएशन, एनी हाउ द सिचुएशन होगी, कुछ भी सिचुएशन हो, हम लोग उसमें से इजीली निकल जाते हैं। बस वही चीज थी जिसकी वजह से उसको थोड़ी हिम्मत आती है। ओके, अभी देखो यहाँ तक मैं स्टोरी एंड करती हूँ, क्योंकि चैप्टर अभी थोड़ा आगे है, बट वो कंप्लीट होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको बताऊंगी, बट तुमको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा कि उसके साथ क्या हुआ, वो कितना खुश था और अचानक से उसके सामने कैसी प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे मैं स्टोरी एंड करती हूँ गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए, और कुछ डाउट हो तुम लोगों को तो मुझे बताना है। एंड करते हैं, बाय।